الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب صدر اور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے خدا سے پوچھ لو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کا دے. سامعین کرام سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. کونین کے تاجدار آفتاب رسالت مہتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دنیا کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق نے کی ہے اور صبح قیامت تک کرتی رہے گی. جن و بشر نے میرے آقا کی تعریف کی ہے, ولی و کتب نے میرے آقا کی تعریف کی ہے, حور و ملائک نے میرے آقا کی تعریف کی ہے, صحابہ اور فرشتوں نے میرے آقا کی تعریف کی ہے اور سب سے بڑھ کر خود رب قدیر نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے. اور اتنی تعریف کی ہے کہ پورا قرآن پاک میرے آقا کی تعریف میں اتار دیا گیا تاکہ صبح قیامت تک ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا رہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. سامعین کرام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی بھول پر جنت سے زمین پر اتارا تو آپ نے بہت آنسو بہائے اور اللہ سے دعا مانگی اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار جب تو نے مجھے پیدا فرما کر میرے بدن میں روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ جس کے نام سے تو نے اپنا نام ملا کر لکھا ہے وہ یقیناً تیرا سب سے بڑا محبوب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک تم نے سچ کہا, اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو نہ ہی میں تمہیں پیدا کرتا اور نہ ہی ساری کائنات کو, چونکہ تم نے ان کو میرے دربار کا وسیلہ بنا دیا ہے اس لیے جا میں نے تجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ حضرات اسی لیے امام احمد رضا کیا خوب فرماتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے جہان کی حکمرانی عطا فرمائی اور فرمایا کہ رسول کی تعریف اللہ کی تعریف ہے, رسول کی رضا اللہ کی رضا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا ایک ٹکڑا ہے جس میں خدا نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے ملایا اور آپ کے مرتبے کو بلند و بالا کر دیا. بے شک میرا رسول وہ رسول ہے جو انگلی سے اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج الٹ آتا, راہوں سے گزرتے تو راستے مہک جاتے, کسی کو چھو لیتے تو شفا ہو جاتی, سنگریزوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ کلام کرنے لگ جاتے, کھارے پانی کے کنویں میں لوگ دہن ڈالتے تو وہ شری ہو جاتے. بے شک آپ کی رحمت چاند کی چاندنی پر ہے, سورج کی روشنی پر ہے, دریاؤں کی روانی پر ہے, سمندر کی طغیانی پر ہے, پھولوں کی مہک اور ستاروں کی جگمگاہٹ پر بھی ہے. بے شک میرا رسول اللہ امام الانبیاء ہے, سید المرسلین ہے, رحمت للعالمین ہے. اپنے مولا کی ہے بشان عظیم, اپنے مولا کی ہے بشان عظیم, جانور بھی کرے جس کی تعظیم, سب کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں. وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. سبحان اللہ. جو حدیث اور جو اشعار یہاں کہے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم کو کیا کہنا ہے؟ زور سے بولو سبحان اللہ. اگلے
नंबर शुमार 30 अंसारी मोहम्मद शोएब राहिल अहमद। उन्वान है खुदा से पूछ लो शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंसारी मरियम अनीस अख्तर स्टेज के पास आ जाए। बड़ी इबादत है, जज हजरत नोट फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तकरीर का उन्वान है माँ बाप की खिदमत बड़ी इबादत है। आप हज़रात एक बार दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। हज़रात, अल्लाह ताला और अपने माँ बाप के साथ एहसान करने का हुक्म दिया, मगर हम गौर करें तो हमारा क्या हाल है? आज तो ये है, आज अपने माँ बाप को गाली दिया जाता है, अलग तो ये है आज इनको मारा पीटा भी जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत का जो सख्त तलब हो तो अपने माँ की करने का हुक्म दिया, मगर हम गौर करें तो हमारा क्या हाल है? आज अपने माँ बाप के साथ एहसान करने का हुक्म दिया। इंशाअल्लाह हम सबको जन्नत मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरियम अनीस अख्तर। उन्वान है खुदा से पूछ लो शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंसारी माहीन आफ्ताब आलम स्टेज के पास आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है खुदा से पूछ लो शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सर, जज साहिबान और सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है खुदा से पूछ लो शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सर, जज साहिबान और सामईन इकराम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए हिदायत, हर दर्द का दरमा और सारी इंसानियत के लिए शराफा रहमत है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद किया। और अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है कि हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। जो तो दुनिया में आए मुकर्रम बनकर कोई आया ना मगर रहमत आलम बनकर। सामईन इकराम, अल्लाह ताला अपनी सारी कायनात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाया और फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको बनाना मकसद ना होता तो ना मैं ये ज़मीन को बनाता, ना आसमान को बनाता और ना ही इस कायनात को बनाता। फर्श वाले तेरी शौकत का जुनू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फिरारा तेरा, अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। खुदा आमीन। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अगली मुकर्ररा अंसारी माहीन आफ्ताब आलम, नंबर शुमार 32। उन्वान है माँ बाप की खिदमत बड़ी इबादत है। इसके बाद और शरीकाने बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस महफिल में मेरा मुअज़्ज़ज़ सुखन है माँ बाप की खिदमत बड़ी इबादत है। इस्लाम में मखलूक़ात इंसानी में माँ बाप की बड़ी अहमियत है, क्योंकि यही दोनों तख्लीक़ी इंसान की ज़ाहिरी ज़रूरतें मानती हैं। लेकिन माँ को बाप से बढ़कर दर्जा अता फरमाया कि वो तमाम सख्तियाँ और मुश्किलें सहती है, बच्चे की परवरिश करती है, अपनी हर खुशी आराम राहत कर देती है। तो क्या माँ से बढ़कर आदमी अपने वजूद में मखलूक़ इंसानी में किसी और का मोहताज है? नहीं आई जनाब, नहीं। माँ के साथ जो दूसरी हस्ती
जिस्मानी और मानी कोशिशें शामिल हैं। इसलिए बच्चा जब उनके मेहनतों और कोशिशों से कुव्वत को पहुंचे तो उस पर फर्ज है कि अपने कुव्वत का शुक्राना वालिदैन की खिदमत की सूरत में अदा करे। मोहतरम सामीन कराम, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माँ बाप की खिदमत व फर्माबरदारी करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत गुजार वो फर्माबरदार होगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में हूँ और वहाँ मैंने किसी के कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज़ सुनी, तो मैंने दरियाफ्त किया कि कौन अल्लाह का बंदा है जो यहाँ जन्नत में कुरान शरीफ पढ़ रहा है। तो मुझे बताया गया कि हारिसा बिन नौमान है। हारिसा बिन नौमान अपने वालिदा के बड़े ही फर्माबरदार और खिदमतगुजार थे। इसी अमल ने उनको इस मकाम तक पहुँचाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में उनकी किरात सुनी। इताअत, रज़ाजोई, फर्माबरदारी और खिदमतगुजारी ये तमाम वालिदैन के हुकूक में दाखिल हैं। वालिदैन के हुकूक को कुरान पाक में तौहीद के बाद फरमाया गया, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि बंदे के हुकूक में सबसे अफजल हक वालिदैन का है। वालिदैन की इताअत और खिदमतगुजारी फर्ज है, अगर चाहे काफिर और मुशरिक क्यों ना हो। इनकी दुनिया में खिदमत की जाए, लेकिन कुफ्र और शिर्क के मुताल्लिक इनकी बात तस्लीम ना होगी। मेरे मोहतरम सामीन, हम तमाम ही जानते हैं कि जिहाद एक अजीम फरीज़ा है, लेकिन वालिदैन का दर्जा उससे भी बढ़कर है। वालिदैन की इजाजत के बगैर तो जिहाद भी जायज नहीं। खुदा कदीर व जब्बार ने वालिदैन की तौक़ीद इस बात से की कि जन्नत में उनके कदमों में डाल दी और बाप को जन्नत का दरवाजा करार दिया। कहीं फरमाया कि वालिदैन हमारे लिए जन्नत भी है और दोज़ख भी, तो कहीं फरमाया कि वालिदैन की खुशी में मेरी खुशी है। रब ताला हमसे ताक़ीद फरमाता है कि अपने वालिदैन के साथ भलाई करो, उन्हें उफ़ तक लगाओ, अजीब दो और उनसे अदब व इज्जत और लहज़ लहज़ में बात करो और उनके लिए इताअत का बाज़ू मोहब्बत से बिछा दो। हाज़रीन, क्या किसी मज़हब में इतना खूबसूरत और इज्जत बख्श तसव्वुर है? नहीं, हरगिज़ नहीं। अफजल अमाल में नमाज के बाद वालिदैन की खिदमत का दर्जा है, यहाँ तक कि वालिदैन के दोस्तों, रिश्तेदारों और मिलने जुलने वाले के साथ नेकी करना गोया वालिदैन के साथ नेकी करना है। कुर्बान चाहिए इस्लामी तहजीब पर कि जहाँ मोहब्बत भरी नज़र से वालिदैन को देखने पर हज का सवाब दिया जाता है। जनाब अली, हम देख रहे हैं कि मगरबी माशरे की तकलीफ करते हुए आज बेशतर घराने वालिदैन की इज्जत नहीं करते। वहाँ वालिदैन अपने बच्चे को देखे बिना ही ओल्ड एज होम में तड़प कर मर जाते हैं। वहाँ पूरे वालिदैन आज़ादी में रुकावट, नाकारा और गैर ज़रूरी शय में शुमार होते हैं। खुदारा उनकी मानवी तरक्की से मुतासिर होकर अंदर दिल पैदा ना करें कि मगरबी माशरा शैतानी शिकन में कसा हुआ वो ज़ाहिर खुशनुमाग है, जहाँ आज़ादी, खुद मुख्तारी और हक दर्जा बेइज्जती के नाम पर क्या कुछ है आज हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐज़िया अपने माँ बाप की नाकदरी न कर, ऐज़िया अपने माँ बाप के साये की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। अल्लाह ताला रब्बे हकीकी है और वालिदैन रब्बे मजाजी, इसलिए इन दोनों के हुकूक की अदायगी से आदमी विजाता मुस्तहिक हो सकता है और फलाह दाराइन हासिल कर सकता है। रब्बे कदीर हमें हमारे वालिदैन का मुती फर्माबरदार बनाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खुदा हाफ़िज़। हजरात, ये थी अंसारी माहिर आफ्ताब आलम। अब अगली मुकर्ररा है अंसारी उम्मे ऐमन असरार अहमद, नंबर शुमार 35। उन्वान है माँ बाप की खिदमत बड़ी इबादत है। जनाबे सदर, जज साहिबान और सामीईन मोहतरमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तकरीर का मौजू सुखन माँ बाप की खिदमत बड़ी इबादत है। सामीईन, आज के इस पुरफतन और नासाजगार माहौल में जबकि हर तरफ बेदीनी और तबाही की फज़ा गूंज रही है, जबकि हर तरफ लोगों के साथ बदअखलाकी और गारतगिरी हो रही है, इस वक्त में मैं कुछ अल्फाज कहने की जसारत कर रही हूँ
की खिदमत को अपना फर्ज समझे कि माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको दरगुजर कर दें। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप की खिदमत करो, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। जिसने उनकी खिदमत में कोताही की, अल्लाह इस शख्स से सख्त नाराज होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम माँ बाप की खिदमत करें और उसको अपना फर्ज समझें। अल्लाह हमें दोनों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा मोमिन जिक्रा मोहम्मद अकमान उन्वान है खुदा से पूछ लो शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद उम्मे ऐमन अली अकबर तैयार रहे। मेरी तकरीर का उन्वान है माँ बाप की खिदमत बड़ी इबादत है। मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों और शहजादों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, एक मुकम्मल दिन है। इस्लाम में दाखिल होने के बाद एक मुसलमान पर जो हुकूक आयद होते हैं उनके दो किस्म हैं। नंबर 1 हुकूकुल्लाह, नंबर 2 हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक वालिदैन का है। अल्लाह अज़्ज़ल ने वालिदैन को बहुत अजीम मर्तबा अता फरमाया है और कुरान मुक़द्दस में वालिदैन और उनकी अज़मत, हुस्न सुलूक का जिक्र आया है। एक जगह इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाता है, अल्लाह की इबादत करो, किसी को इसका शरीक ना ठहराओ और वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो। और एक गिला पर उफ तक ना कहने का हुक्म दिया गया है। लेकिन आज के मुस्लिम मुआशरे का जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि बच्चा अल्लाह की नाफरमानी करता नजर आता है। एक माँ मुख्तलिफ किस्म की तकलीफें झेलकर अपने बच्चे की परवरिश करती है। बच्चा अगर किसी से झगड़ा करे तो अपने बच्चे की दफा के लिए दूसरे की माँ से झगड़ने को तैयार हो जाती है। एक माँ तो खुद गीले बिस्तर पर सो जाती है, लेकिन अपने बच्चे को अपने सीने पर चैन की नींद सुलाती है। बच्चा अगर रो दे तो माँ का दिल तड़प उठता है। माँ अपने बच्चे को बहला फुसला कर खामोश कर देती है। लेकिन आज वही बच्चा अपनी माँ को तरह तरह की तकलीफें देता नजर आता है। आज का बच्चा अपने वालिदैन अगर कुछ कह दे तो आसमान सर पर उठा लेता है। जो बच्चा वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक नहीं करते, इन्हें कुरान मुक़द्दस की आयतों से सबक हासिल करना चाहिए और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब को राजी करने का कितना बेहतरीन तरीका बता दिया कि अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो अपने वालिदैन को राजी कर लो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे खुश हो जाए तो अपने माँ बाप को भी खुश रख लो। लेकिन आज का मुसलमान तो अपने दोस्तों को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है। अगर उसके माँ बाप लूटे हो तो उनको मनाने की कोशिश नहीं करता। सबसे बड़ी एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह इससे राजी हो जाए। दुनिया में इसलिए इंसान को भेजा गया है कि वो इबादत के जरिए अल्लाह को राजी करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसान तरीका बता दिया, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए तो अपने वालिदैन को भी राजी कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये थी मोमिन जिग्रा, नंबर शुमार 35, अंसारी उम्मे ऐमन अली अकबर। उन्वान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र तहम्मुल। इसके बाद अंसारी मुंतहा फैजुर रहमान स्टेज पर आ जाए।